Hello, welcome to the newspaper and editorial analysis with Advocate Janvi. Today we will see that how Union government current scheme to pointed upon the infiltration industries. The Union government apparently said that will not tolerate any type of illegal migrants within the territory of India, and I absolutely support the decision of the Union government because एक इलीगल माइग्रेंट इंडिया में एंटर होता है तो सिर्फ इंडिया की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी और स्टेट पर थ्रेट नहीं होता, इवन द सिटीजंस ऑफ इंडिया आर इन थ्रेट बिकॉज वी हैव सीन द एग्जांपल्स इन असम, वी हैव सीन इन वेस्ट बंगाल की कैसे जब इलीगल माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन देश में बढ़ जाती है सो दे इंक्रोच इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, दे इवन involve in illegal businesses and illegal trade. So the strong approach of Union government, the strong backbone of Union government to not support any kind of infiltration within the boundaries of country is strong enough. Union government का कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी कहना था कि जो previous government थी, जो opposition था, वो बहुत ज़्यादा support करता है illegal migration को because the illegal migrants are their vote bank. But the current government are not in support of any such illegal migration because they don't want the vote bank that comes from the illegal voting. So the news highlight that in Assam district के दिनम वहाँ पे around 70 lakhs bighas of land in Assam are in hands of illegal migrants. उन्होंने उस पर इंक्रोचमेंट कर लिया, अपना कब्जा कर लिया. तो ये सिर्फ आसाम एग्जांपल है, कुछ स्टेट्स का डेटा अभी बाहर भी नहीं आ गया. तो the union government is very active. The Modi government in 2025 when it comes to decision of illegal migrations, they said that they are targeting the illegal migrants और उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा because we are guardians of constitution, we are at duty to protect the integrity of nation. और जब कोई नॉन सिटीजन देश में आ रहा है इलीगल तरीके से यहाँ पर जॉब्स करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जो सिटीजन्स ऑफ कंट्री उनका एम्प्लॉयमेंट भी, उनकी ट्रेड में भी दिक्कतें हो रही है. और ये कितना बड़ा वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक सिटीजन का जब इलीगल माइग्रेंट्स सिटीजन्स की लैंड अपने इसमें उस पर एडवर्स पोजीशन क्लेम करते. सो दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड अपॉन. सो द यूनियन गवर्नमेंट सेज दैट इन आसाम with the meeting with the Biswa Sharma, the chief minister of the Assam, in Assam, he says the conspiracy is a grave threat to national security, necessitating a democracy mission across the country. He accuses the Congress of shielding and protecting infiltrators. So, this news is important for us. You can connect the CAR 2019 Citizenship Amendment Act with this particular news. Now, the next news about the PLI scheme. So basically, जो PLI scheme थी, इस particular scheme में गवर्नमेंट ने जो ACs एंड जो LED लाइट सेक्टर था उसको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस करेगी. तो फिर से गवर्नमेंट अराउंड अक्टूबर 14 इस स्कीम को रीओपन करेगी. तो बेसिकली इस स्कीम से फायदा जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ AC एंड द एलईडी लाइट्स उनको फायदा होगा ही होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं जब एफडीआई आएगी कि पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो होगा तो हमारे देश का जो रेवेन्यू है उस पर हमें बेनिफिट मिलेगा. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज ओपन द एप्लीकेशन टू apply the window to apply for the production linked incentive, the PLI scheme on Sunday, citing that it will help in the market growth. Further, it will help in the industry confidence following the success of early round of scheme. जो पहले ही ओपन हुई थी स्कीम इनिशियली बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस देखा गया था फ्रॉम द बोथ साइड्स, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड्स एंड इवन व्हेन इट कम्स टू द investment. So Ministry of Commerce and Industry are very confident about the reopening of this scheme. So Windows application के लिए आ चुके हैं. Now you should from current perspective आपको पता होना चाहिए
द स्कीम का गोल क्या, तो इट इज टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसीज एंड एलईडी लाइट्स कंपोनेंट इंक्लूडिंग those not currently produced within India in sufficient quantity. So who can apply this particular scheme? So both the new applicant and the existing beneficiaries of this scheme who have invested before, they can also reapply in this particular scheme. So around 83 applicants with commitment investment of 10,000 crores have already been selected for this particular scheme. Now we have the next news, एक थोड़ी सी डिस्ट्रेसफुल न्यूज है. सो करंट डेटा जब 2025 का हमारे सामने आता है तो हमें पता चलता है with apex court with the honorable supreme court of India we have 88,417 pending cases. I will repeat, 88,417 cases, an all time high. So around 69,553 हमारे पास सिविल केसेस पेंडिंग है और 18,864 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है. जब एपेक्स कोर्ट के पास इतनी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है, सो यू कैन इमेजिन द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कंसर्न हाई कोर्ट एंड एट लोअर जुडिशरी. सो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है देश में ये उसको दर्शाता है. और पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट फुल जजेस की बेंच 34 जजेस सिटिंग है, उसके बावजूद हमारे पास पेंडेंसी ऑफ केसेस है. अब इसमें किसी भी तरीके से जजेस की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जजेस आर इन्वॉल्व इन हाई स्टेक मैटर्स और हिस्ट्री में डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो हाई लेवल कमर्शियल डिस्प्यूट है उन पे उन्हें डील करना है. तो दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम एंड इट इज कंप्लीटली जस्टिफिएबल. द प्रॉब्लम इज ओवरऑल सिस्टम. आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी. अब ई फाइलिंग होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में केसेस इसलिए इतने ज्यादा जा रहे हैं बिकॉज लोअर जुडिशरी आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू सॉल्व द केसेस. द हाई कोर्ट इज नॉट एफिशिएंट इनफ टू सॉल्व द केसेस एंड even the problem with the high court judges, the problem with lower judiciary is that they are not equipped with the proper infrastructure, the proper solutions. इसीलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा pendency of cases है and the victim, the applicant, the petitioner, they directly approach the Supreme Court. Because Supreme Court में थोड़ा standard procedure है. That's why people in when their fundamental right influenced they prefer Supreme Court over the High Court. Now, even the news itself highlight that इस बार का जो डेटा है वो पिछले सालों से सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस है. तो जो हमारे सीजीआई है बीआर कवि जी, उन्होंने इस बार इनिशिएटिव लिया है. दे हैव सीन दैट जो समर बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट की ड्यूरिंग द समर वैकेशन दे विल वर्क हाफ टाइम, दे विल वर्क इन बेसिस. पूरी तरीके से वैकेशन नहीं होगी जो कि देना भी नहीं चाहिए. इट्स हाई 3 months are very long for vacations when they have already such pendency of cases. Even we have to from this scratch we have to improve our system. इतने ज्यादा लोअर जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस उसके बावजूद भी सिविल जजेस की वैकेंसी निकलती 8, 9, 10. रिक्रूटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है सिविल जजेस का because due to the corruption. So we have to start from the scratch. जब लोअर जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होंगे तभी हायर जुडिशरी में भी कम हो पाएंगे. जब लोअर जुडिशरी इफिशिएंटली तरीके से वर्क कर पाएगी और कोई इंसान इफिशिएंट तरीके से वर्क तभी कर पाता है when they are not under so much of pressure. So even the honorable judges of Supreme Court उनको at least 20 law clerk मिलने चाहिए, but even they don't have sufficient law clerks with them. Now, the DY Chandrachud and before CJS also up to this particular view that Supreme Court को साल भर वर्क करना चाहिए during the vacation. It must be the summer benches. So कहीं ना कहीं जब ऐसे न्यूज हमारे सामने आती है तो कहीं ना कहीं वही चीज याद आ रही है, justice delayed, it's justice denied. You cannot imagine 18,864 pendency of criminal cases. जब criminal case pending होते हैं, when prisoners are under trial, so this is something we said that fairness तरीके से justice नहीं हो पा रही है. So कहीं ना कहीं यहाँ पर
the government is responsible, the system is responsible, and now it's the high time to review our system of artificial intelligence. Are there completely agree that when it comes to the legal field, artificial intelligence में उतनी तरीके से rely नहीं कर सकते, but at least we can rely with artificial intelligence when it comes to the procedural lapses, procedural technicalities के लिए. We should introduce the e-filing system in all the arenas of courts, either in lower court, in high court, in supreme court. जो पेपर वर्क है वो कम से कम होना चाहिए, तभी पूरा सिस्टम एफिशिएंट तरीके से वर्क कर पाएगा. So now we will move towards our editorial. जो आज का एडिटोरियल है, बहुत दिनों से हम इसको डिस्कशन करके आ रहे हैं. इट इज ऑन द बैक ऑफ मनी, ऑनलाइन मनी गेम्स. आपने इसके पॉजिटिव एडिटोरियल बहुत दिन से हम देखते आ रहे हैं. तो ऑल ऑथर्स द क्रिटिक्स वर ऑफ द व्यू दैट अच्छा हुआ बैन लिफ्ट हो गया, बैन लगना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया का यूथ है, मतलब the adult of the people of the country are addicted towards the dream level और जो भी ऑनलाइन मनी गेम्स है, जो फैंटेसी गेम्स है उनकी तरफ. बट मिस एमएम प्रजीत जो आज के वी हैव द ऑथर इन फ्रंट ऑफ यू, इनका ओपिनियन थोड़ा अलग है. ही इज टॉकिंग दैट रेगुलेशन होना चाहिए था, पूरी तरीके से बैन नहीं लगना चाहिए था. गवर्नमेंट को थोड़ी आलस आ रहा था, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना था. So उन्होंने इजी पाथ चूज करा, उन्होंने बैन लगा दिया इंस्टेड ऑफ रेगुलेशन. क्योंकि आप जब रेगुलेट करते तो आपको बहुत सारे लॉज में चेंजेस करना होगा और इट विल टेक टाइम. और ये बहुत ज्यादा हेस्ट में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ये बिल पास करा गया विदाउट डिस्कशन, डिबेट्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. इवन द हाई लेवल कमिटी के पास बिल को नहीं भेजा गया. इवन द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट सेंट्रल ने अपनी पावर को ओवररीच करा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी. In the state is as per Schedule 7 money games, online gaming पर deal करने के लिए. So before talking into the editorial, before discussing in detail, मैं आपको बता दूं there is a difference between the gambling, the fantasy game and the skill game. Skill games अभी legal है, जहाँ पर आपकी खुद की skills लगेगी, लेकिन जो fantasy games जहाँ पर money involved है, जहाँ पर खुद का कुछ skill set नहीं लग रहा है, जहाँ पर आप rely कर रहे हो on the computer, on the kismet, I would say in the layman terms. So that is fantasy game that are gambling. So the gambling is a state subject. State का इसमें right है to either ban the gambling in their state or to make it legal. For example, casinos are legal in Goa. When it comes to Madhya Pradesh, when it comes to Uttar Pradesh, Maharashtra, the casinos are illegal because यहाँ पर state government. So let's dive into our editorial. अपना opinion भी बता सकते हैं क्या ऑनलाइन मनी गेम बैन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. So let's start. In a manner akin to the still operation मतलब secrecy में, the government of India pushed the promotion and regulation of online gaming bill in parliament as monsoon session drew to close. So the author is saying कि parliament में जो ये बिल पास हुआ है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में पास हुआ है, और जब मॉनसून सेशन एंड होने ही वाला है तब आपने ये बिल पास करें ताकि इसमें बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस ना हो सके. This bill outlawed online real money games while aiming to promote the growth of e-sports and online social field. So this bill particularly banned the gambling, but to skills game होते जो e-sports है उसको बिल प्रमोट करता है. Now the bill was rushed through both the houses without any debate and was not preceded by any consultation with the affected industry or with the states which have jurisdiction over a key aspect of the topic. So here the author is saying that ये जो particular bill है, इस पर जो यहाँ पर कहा गया है preceded by any consultation, इससे ये मतलब है जो concerned stakeholders है, आपने जो आईटी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट हैं, आपने उनसे एक बार राय ली थी कि क्या आप जो बैन कर रहे हो तो इससे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है, कैसे हमारे रेवेन्यू जनरेशन में दिक्कत हो सकती है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा. इवन नॉट कंसल्टेड विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जिन स्टेट्स में ये चीज प्रमोट हो रही थी जहां पर ये लीगल था और स्टेट के रेवेन्यू में दिक्कत होगी ना बिकॉज़ ऑफ बिकम इलीगल.
सो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनियन ने अपने आप में बहुत यूनिलैटरल जो डिसीजन है वो लिया विदाउट कंसल्टिंग द कंसेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. The online gaming was sunrise sector in India and had been significant foreign investment. So the author sunrise से मतलब ये जो सेक्टर बस अभी बूस्ट होने वाला था और जहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस थे. But the sudden ban will have repercussions for foreign direct investment across domains. So the author is of the opinion that ये बिल का बैन होने से बहुत ज्यादा रिपरकशंस देखेंगे, क्योंकि देखो जो बाहर के जो एफडीआई जो इन्वेस्टर्स है उन्हें लगेगा कि भारत में जो लीगल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है. गवर्नमेंट रातों रात कोई सब रेगुलेशन ला देती, किसी चीज को बैन कर देती है. सो द इंडस्ट्री इज नॉट स्टेबल. तो क्यों हमारा पैसा ऐसी इंडस्ट्री में लगा जहां पर गवर्नमेंट कुछ भी चेंज करती रहती है? बिकॉज व्हाई नो वन वांट टू इन्वेस्ट इन अनस्टेबल मार्केट. और वहां पर भी लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं, जहाँ पे प्रोसीजर को जानबूझ के विदाउट एनी रीजन स्ट्रिक्टर बनाया जाता है. सो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज डिजिटल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इंडिया बहुत अच्छा कर सकती थी और अभी भी कर रही है. और द ऑनलाइन मनी गेम इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रही है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, व्हेन इट कम्स टू डिजाइनर्स, when it comes to graphic designers. So the new जो अभी ग्रेजुएट उनका एम्प्लॉयमेंट के चांसेस यहाँ पर थे. तो कहीं ना कहीं इन द एडिटोरियल में ही आगे वाली लाइन्स पे हाईलाइट करा गया कि 1.5 लाख लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट होगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. So the online gaming sits at the intersection of technology, payment and digital content. The very sector India claims to be champion under the banner of Digital India. So the author is saying the online money games जो हम play करते हैं, when we talking about the Digital India. So when we are promoting the Digital India, so हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना था, क्योंकि ये पार्ट है डिजिटल इंडिया का. और जब ऐसे कोई डिसीजन टेक्नोलॉजिकल डिसीजन गवर्नमेंट इतने हेस्ट में लेगी विदाउट थिंकिंग the repercussions, so इससे हमें प्रॉब्लम फेस होगी देश की जीडीपी पर ग्रोथ. एंड इवन यहाँ पर डेटा भी पता है ऑथर ने that around 1.5 लाख पीपल by 2025 जिनको जॉब मिलने वाली थी, अब ड्यू टू द बैन यहाँ पर ट्रिमेंडियस जॉब लॉसेस होंगे. फर्दर the author highlighted that कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री थी कभी गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करती इंस्टेड ऑफ बैन. सो यहाँ पर गवर्नमेंट 70,000 रेवेन्यू देखने को मिल सकता था इन जीएसटी. और इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल जो जीएसटी उस पर ही अपना नुकसान नहीं करा, बट उन्होंने जो स्टेट रेवेन्यू वहां पर भी नुकसान करती है, बिकॉज इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा कमाने का मौका मिलता है. यहाँ पर स्टेट रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता था, बट the decision in haste has violated the revenue doors for both the central and the state. Now the author has even highlighted in the next para that जो central government उनका ये कहना था the government the central argument in the support of the ban was that online real money games have resulted in financial ruin for players and resulted in something akin to drug addiction, which I agree with the central government. क्योंकि जो ऑनलाइन मनी गेम्स थे वो कहीं ना कहीं एडिक्शन का काम तो कर रहे थे. बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, बहुत सारी जो फैमिलीज थी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुई ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन गेमिंग मार्केट. सो आई सपोर्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट व्हेन आई थिंक विद द ओपिनियन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर मुझे लगता है कि रेगुलेट होना तो मार्केट पूरी तरीके से बैन नहीं होना चाहिए था. So how will the ban likely to promote the cure? The author is asking, or what careful regulation is being developed in the state of Tamil Nadu? So Tamil Nadu ने जो करा था, Tamil Nadu ने complete ban नहीं लगाया था, Tamil Nadu रेगुलेट करी थी पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तमिलनाडु को इंस्पिरेशन दे सकती थी और बैन के जो आप कम कर सकते थे नेगेटिव इफेक्ट्स प्रॉपर रेगुलेशंस जो दूसरी कंट्रीज में होते हैं. वहां पे एज रेस्ट्रिक्शन है, बोर्ड रेगुलेशंस है,
प्रॉपर तरीके से केवाईसी से एंड विद प्रॉपर लीगल कंप्लायंसेस, वहां पर टैक्स रेगुलेशन या टैक्स इवेड नहीं कर सकते व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू the same approach उठा सकती थी instead of complete ban. Now, the author is saying that the online gaming companies are working on technological initiatives to identify and prevent problematic gaming. Responsible play tools. So the author is not suggesting a solution that responsible play tools already exist. Now proven globally, क्योंकि दूसरे देश भी सेम चीज कर रहे हैं. This include age category restrict access to minors, self-exclusion mechanisms, deposit time limit, and bot detection system, and know your customers and anti-money laundering checks. Ethical advertising standards. Instead of spreading such safeguards, the ban abruptly destroyed them, leaving players more vulnerable than before. So, the author is saying that ये रेगुलेट कर सकते थे. अब गवर्नमेंट ने क्या करा, बैन तो कर दिया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली तरीके से जो इलीगल मार्केट है उसको बढ़ावा दे दिया, उसको एक्सेस दे दिया, क्योंकि जो एडिक्टेड है वो दूसरा तरीका तो खोजेगा. वी नो दिस इज इंडिया, यहाँ पर कोई भी चीज लीगल तरीके से नहीं चल सकती. तो जो पहले लीगल थे, जो सही तरीके से चल रही थी चीजें, अब वो खुद इलीगल तरीके से उन चीजों को बढ़ावा देगी, जहां पर ना तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा. अभी भी जो यूथ है हमारा, वो भी अभी भी एडिक्ट रह ही सकता है गेम से. सो the author is very strong opinion that ban नहीं होना चाहिए था. If online gaming platforms that comply with taxation and regulations are forced out compulsory players, then inevitably such platforms operate beyond and reach of Indian authorities, pay no taxes, expose consumers to fraud and unsafe practices. So the author is saying that now the underground network, जो illegal market है, ये जो गेमिंग की, वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएंगे और ये अपना कंज्यूमर बेस को ढूंढ लेंगे. तो इससे अथॉरिटीज को भी नुकसान होने वाला है, कंज्यूमर्स को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए. Now this ban would just end accountability. The real issue here is regulatory capacity instead of building a strong oversight framework which balance public interest with private profit. So the government ने public interest with private profit को balance करना था, and even दोनों का ध्यान देना था. जो already existing stakeholders है, जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए थे अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल ड्रीमलैब, उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने आर्टिकल 90 क्लॉज G वायलेट करा as per the author, and even the ban attacks the very foundation of this right. With one piece of legislation, the thriving industry has been dealt a body blow. If the concern was about the promotion of gambling, the union government should have consulted with the states. So the author is even talking constitutionally here. The author का यहाँ पर ये कहना है कि जो ये बैन है, ये देखिए जो गैम्बलिंग है, ये किसका सब्जेक्ट है? ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है. जो आईटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है. सो जब आप स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में रूल बना रहे तो एक बार आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए था बैन करने से पहले. आपने यहाँ पर जो जो लेजिस्लेटिव ओवररीच है वो यहाँ पर किया है. The new law has already been challenged in courts and it raises several questions for the constitutional proprietary. The gray zone concerning the online gaming has been whether it constitutes game of skill or a game of chance. So the author is saying कि जो words are game of chance and game of skills, इनके interpretation में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, gray area बन गया है, because different judicial authorities have different definitions for the game of skills and for the game of chance. The judicial decision has consistently upheld the legitimacy of the game of skill. The states are allowed to regulate or ban games of chance or gambling. Good regulation will clear the doubt around the subject. So proper तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें रेगुलेट कर देती जो गैम्बलिंग मार्केट है, तो कहीं ना कहीं जो डाउट था गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल में जो बार-बार क्वेश्चन उठता है इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, सो वो भी डिबेट एंड हो जाता. Now, ideally, the legislation should be developed to protect players, prevent addiction and exploitation, and addresses the priorities of various stakeholders and the state. The choice is not between the prohibition
There is middle ground, the clear licensing framework, strict compliance standards, and taxation regime, fair but predictable. So the author is saying कि बैन करने के अलावा भी एक मिडिल ग्राउंड हो सकता है. आप प्रॉपर तरीके से कंप्लायंसेस बनाते थे, लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स बनाते थे. पूरा प्रोहिबिट करना कहीं ना कहीं ये वायबल सोल्यूशन नहीं है. जब रिवेन्यू जनरेशन की बात हो, जब ऑलरेडी जो स्टेक होल्डर्स है जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके, जब उनकी बात हो, एंड इवन द पब्लिक, the pairing on that real game is on the other hand only ensure both revenues and opportunities and vanish into underground economy while leaving players unprotected and vulnerable. So अभी भी जो player जो protect करना चाहते हैं वो unprotected तो है, because now they will get addicted to illegal substances. So time will tell. author कह रहे थे बाद में पता चलेगा ये जो बैन हुआ है इससे क्या सिटीजन्स का प्रोटेक्शन हो रहा है, हमें उनको फेल करते हैं. So I want to know your opinion. आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऑनलाइन मनी गेम्स बैन होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? बिकॉज आप लोग दोनों तरीके के एडिटोरियल्स देख चुके हो, इवन विद द प्रॉस एंड इवन विद द कॉन्स, सो यू कैन गिव द वाइबल सॉल्यूशन. और जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखो तो आई वांट द यूपीएससी द नेट रेलेवेंट अप्रोच. कुछ भी उठा के नहीं बोलना विदाउट एनी रीजंस. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. Providya is always with you. Follow us on Telegram, YouTube, Instagram. Just message us, visit our center with any doubts. All the faculties are available. So thank you for your patience listening. We are always there for you kids. And start your prep because CLAT में अब ज्यादा दिन नहीं बचे. Revise your current affair. लीगल रीजनिंग पे फोकस करना है, कौन अच्छे से सॉल्यूशन सॉल्व करना है. बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन रिमेंबर कभी आपके टॉप 11 में पहुंचने का सपना है तो विदाउट क्वांट इट इज नॉट पॉसिबल. क्वांट में बहुत सीधे नंबर आप ला सकते हो. सो स्टार्ट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस और ब्रेक भी देना है. यू हैव टू फॉलो योर हॉबी, सिर्फ पढ़ना नहीं है. सो मिलते हैं कल से फिर द हिंदू एंड एडिटोरियल एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस. थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.